Now today I am going to discuss what is the light and what is the advantage of light and how I detect or our eye detect lights whenever I see any object in this universe. What is the reason behind it? Reason is it reflection. Reflection is the phenomena by virtue of which we can see any object. If there is no reflection, then we can see any objects. It means only one factor is responsible, that is reflection, and some one another part is important, that is eye. Means first of all reflection, and after reflection we can say any object. Whenever light fall on our retina, it means without reflection we can't see any object. And here we are going to discuss what is the advantage of reflection and what is the meaning of reflection. Bouncing back of light in same medium, that is called reflection. Whenever light is coming here and light is going this point to camera, and after reflection you are able to see this board, that is reflection. If you see any spherical part, it means light is coming like a sphere. Light is coming from where doesn't matter. Light is coming from this point to your eyes, then you are able to see this is a spherical part. And whenever you see this triangle, it means some light is coming after reflection to your eyes, then you are able to see this light, this light, this light. But some dark point, black points is not reflecting any light, then you are not able to see this line, then you can say this is triangle. It means without reflection you can't see any object. If I will dark this whole space, then you can't see this whole space, triangular space. It means there is no reflection through this point, through this space, and reflecting from this surface, so you are unable to see this. It means no reflection from this point and only reflecting surface is here, so this is dark. It means dark space, darkness, black body. It means there is no reflection, then you are unable to see dark body, then you are saying that that is dark. Dark means unable to see. Whenever you see any object, red, yellow, white, any colors, it means that particular color is reflecting from that surface, then you are able to see that is green, that is blue, that is red. तो थोड़ा हिंदी में भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो तो सभी के लिए है। सीधा सा बात इतना ही हमने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है तो उस पार्टिकुलर रीजन से लाइट जिस कलर का आ रहा है, मीन्स ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट पर लाइट कहां से आया डजंट मैटर, मतलब ही नहीं है इसका। ऑब्जेक्ट से लाइट आपके आंखों तक आ रहा है और जैसा लाइट आएगा वैसा दिखेगा। मतलब कि इस व्हाइट बोर्ड से लाइट, व्हाइट बोर्ड पर लाइट आ रहा है और यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आपके आंखों तक जा रहा है, कैमरा तक जा रहा है, तो इमेज बन रहा है। सेम फीचर हमारे आंख का भी है। लाइट यहां आया, अब इस सरफेस से लाइट अभी जा रहा था, पूरा व्हाइट दिख रहा था आपको, जो लाइट आया चला गया रिटर्न होकर के। अब यहां पर हमने डार्क सर्कल बना दिया, इसका मतलब लाइट यहां से जा रहा था, मैंने उसे रोक दिया, ब्लैक पॉइंट बना दिया हमने, तो यहां से चारों तरफ से लाइट जा रहा है, ये इस पार्टिकुलर पॉइंट से लाइट नहीं जा रहा है, तो ये आपको नहीं दिख रहा है। क्योंकि कहा जाता है ना कि ब्लैक वो चीज है जो सभी कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये पार्टिकुलर पॉइंट आपको नहीं दिख रहा है
क्योंकि यहां से जाने वाले लाइट को हमने रोक दिया, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो आप कहोगे ये ब्लैक है। ये शर्ट ब्लू दिख रहा है क्योंकि लाइट तो आ रहा है, व्हाइट लाइट, लेकिन सबका सारे कलर को ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है ब्लू का, इसलिए ब्लू दिखेगा आपको। ब्लैक में कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, व्हाइट में सारा रिफ्लेक्शन होता है, जैसा लाइट आ रहा है वैसा रिटर्न हो जाएगा, तो आपको व्हाइट दिख रहा है। आप कहीं किसी फंक्शन में जाते हो, आप ब्लू कलर का शर्ट पहन के जाते हो, जाओगे वहां लाइट अलग रहेगा, कलर बदल जाता है, ब्लैक हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, ब्लैक क्यों हो गया? तो लाइट के चलते। ये पूरा जो वर्ल्ड है हमें जो दिख रहा है ना, वो लाइट ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारा आँख डिटेक्टर है किसको? तो पर्टिकुलर रेंज को ये डिटेक्ट करता है। व्हाइट लाइट में जो 7 कलर है सबको डिटेक्ट कर लेता है, जो स्पेक्ट्रम है 7 कलर का उसको डिटेक्ट कर लेता है आँख। लेकिन रिफ्लेक्शन होना तो जरूरी है, आँख के पास लाइट आएगा तब ना, लाइट आ ही नहीं रहा है तो कैसे आप कहोगे कि ये इस कलर पर्टिकुलर कलर का है? तो रिफ्लेक्शन मतलब किसी भी मीडियम से लाइट का टकराना, किसी भी सतह से, किसी भी सरफेस से लाइट का टकराना, और वहां से फिर बाउंसिंग बैक हो जाना। आपके आंखों तक जो कलर पहुंचेगा आप वही कहोगे। वो है या नहीं है ऐसा मतलब नहीं है। होना क्या, रंग जो होता है वो किसी चीज का लाइट के कारण ही होता है, और कोई कारण नहीं है रंग का होना। कोई भी रंग इसलिए है क्योंकि उस पर लाइट आ रहा है और उसके अंदर ऐसा क्वालिटी है, ऐसा नेचुरल उसके पास प्रॉपर्टी मिल गया है, या हमने बना दिया है, दे दिया है, जिसके कारण वो पर्टिकुलर लाइट, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को, पर्टिकुलर वेवलेंथ को आपकी आंखों तक पहुंचा रहा है, बाकी को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। हमारा आंख सेंसर है, लाइट सेंसर है, डिटेक्टर है, डिटेक्ट कर सकता है वो, लेकिन तब डिटेक्ट करेगा ना ग्रीन को जब ग्रीन का वेवलेंथ आ रहा है। अब कोई नेचुरली ऐसा है, हमने इसको ग्रीन पेंट कर दिया, मतलब इस सरफेस को हमने इस लायक बना दिया कि वो ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर दे, बाकी सारे कलर को एब्जॉर्ब कर ले, ग्रीन को भेज दे आपके पास। अगर ग्रीन लाइट हम इस पे डालेंगे ना, तो ये जो वाइट आपको दिख रहा है ना, ग्रीन दिखेगा, ग्रीन लाइट ही इस पे सिर्फ है, तो ग्रीन रिफ्लेक्ट होगा, व्हाइट कुछ नहीं करने वाला, रिफ्लेक्ट करके भेज दिया आपके पास, बाकी आ ही नहीं रहा है। या तो आपको ग्रीन, तब कोई ग्रीन दिखेगा जब व्हाइट लाइट आ रहा है और वो लाइट को सब एब्जॉर्ब कर ले और ग्रीन सिर्फ रिफ्लेक्ट कर दे, या तो फिर ग्रीन आ ही रहा है तो ग्रीन ही जाएगा, इसमें तो कोई लफड़ा है नहीं। तो कलर फुल जो वर्ल्ड है ना, वो लाइट के रिफ्लेक्शन के चलते हैं, जिस सतह से जो कलर रिफ्लेक्ट होगा वैसा कलर आपको दिखेगा। ये तो हो गई रिफ्लेक्शन की बात। रिफ्लेक्शन के लिए नियम है हमारे पास, क्या कहता है कि आने वाला इंसिडेंट रे जो है, रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाता है, उसके बारे में कहा गया कि जिस एंगल से लाइट आ रहा है उसी एंगल से रिटर्न हो जाएगा नॉर्मल से। ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये रिफ्लेक्शन है। तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि क्या है रिफ्लेक्शन, क्या है। हमने जान लिया कि ये कलरफुल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट हमें किस लिए दिख रहा है, तो उस कलर को ये या उस टाइप को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। जैसे मान लिया जाए ये पेन आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये लाइट आ रहा है और पेन वाले स्ट्रक्चर में लाइट यहाँ से जा रहा है आपके आंखों तक, पेन वाले स्ट्रक्चर में। जैसे पेन कहीं पर ना हो, यहाँ पर 3D प्रिंटिंग किया हो, अच्छे से प्रिंट किया हुआ, जिसको 3D प्रिंटिंग कहते हैं, आपको लगता है कि सच में ये पेन यहाँ पर है, पर पेन होता नहीं है, लाइट रिफ्लेक्ट होकर के चला जाता है। तो ये पेन आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस तरह का लाइट, इसके पास ये प्रॉपर्टी है कि इस तरह ये ग्रीन को, ये वाइट को, ऐसा लाइट आपकी आंखों तक भेज दे रहा है, तो ये इमेज बन रहा है, मैसेज जा रहा है, फिर दिमाग उसको पढ़ ले रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेटिना पे बना, फिर सिग्नल बना, ऑप्टिकल फाइबर सिग्नल बनाया रेटिना पे पढ़ने के बाद, फिर वो नर्व को मैसेज गया कि हाँ ये पेन है, हम रीड कर लेते हैं। तो जो भी आँख से हो रहा है ना, वो सब कलर के चलते हो रहा है, सब कलर के चलते हो रहा है। जिस कलर का हमें दिख रहा है उसके पीछे यही रीजन है कि वो पर्टिकुलर बॉडी, सतह उस कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और उसके बाद इसी में देखेंगे हम लोग कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में दो अगर मिरर है, अगर ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है, तो इसके पास ऑब्जेक्ट कैसा बनता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ
रिफ्लेक्शन और दोनों के लिए अगर हम प्लेन मिरर की बात करें और कनकेव की बात करें और कन्वेक्स की बात करें, ये सारा हम देखते हैं रे डायग्राम में। चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों के रिक्वेस्ट पे रिफ्लेक्शन और फिर रे डायग्राम बनाएंगे इसका। जैसा कि आप लोगों को पता है हम एक सीरीज लेकर के चल रहे हैं 10 क्लास का, उसके बाद 12 का, अभी 2 चल रहा है। सारा चैप्टर आपको मिलेगा इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज टॉपिक को समझ लीजिए कि क्या पढ़ाने जा रहे हैं हम लोग। रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन मतलब क्या? डेली लाइफ में जो चीज़ आपको दिखता है, कुछ भी दिखता है तो रिफ्लेक्शन के चलते दिखता है। रिफ्लेक्शन एक फेनोमेना है जिसमें लाइट किसी भी सतह से टकरा करके और रिटर्न हो जाता है तो रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यानी परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन में जब प्रकाश एक ही मीडियम में रिटर्न आ जाता है टकरा करके, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, दैट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का एक नियम है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसमें यह कहा गया कि जिस एंगल से लाइट आ रहा है, जिसका नाम हम जानते हैं इंसिडेंट रे, और जाने वाले को हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, तो आने वाला जो रे होगा वो जाने वाले रे के इक्वल एंगल पे जाएगा। नॉर्मल से हम एंगल ड्रॉ करते हैं। कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारे पास रेगुलर और इरेगुलर हो सकता है। पॉलिश्ड सरफेस से अच्छा रिफ्लेक्शन मिलेगा, नॉन पॉलिश्ड सरफेस से भी रिफ्लेक्शन होता है, तभी तो हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं चाहे वो पॉलिश्ड है या नहीं पॉलिश्ड है। लेकिन जब हम देखना चाहते हैं कि रियल में कहाँ पर रिफ्लेक्शन है, तो उसके लिए पॉलिश्ड सतह चाहिए होता है, जो मिरर है। मिरर में एक तरफ पॉलिश किया रहता है और जो पॉलिश वाला सरफेस होता है उसके अपोजिट साइड से जब लाइट जाता है तो आपको चमकता हुआ दिखता है, रिफ्लेक्शन होता हुआ आपको दिखता है। कोई भी सरफेस हो, सरफेस से टकरा करके लाइट का रिटर्न हो जाना रिफ्लेक्शन है। तो इस पे ये चीज़ आता है कि उसके लिए एक नियम बन गया है कि जब सतह से टकराएगा लाइट तो कितना एंगल से लौट जाएगा। तो कहा गया या देखा गया एक्सपेरिमेंटली, फिजिक्स में कोई भी चीज़ एक्सपेरिमेंटली आता है तो ज़्यादा फेथ होता है लोगों को, बाद में भी लेकिन वही होने वाला है। अगर हम थ्योरेटिकली कुछ लाते हैं तो वो भी एक्सपेरिमेंटली प्रूफ होता है। तो लाइट का मैक्सिमम चीज़ नेचर में होता है। हम देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारा आँख जो है सेंसर है। कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेंसर है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रीड कर सकता है। उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का अलग अलग क्लासिफिकेशन है, गामा है, एक्सरे है, रेडियो वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो वाइट लाइट का रेंज जो है, उस रेंज को हमारा आई जो है वो रीड कर लेता है। सेंसर जो हमारे पास है, जिसको हम आँख कहते हैं, वो लाइट सेंसर है जो वाइट लाइट को रीड करने की कैपेसिटी इसके पास है। जैसे अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड नहीं रीड कर पाता, वाइट लाइट को रीड कर लेता है। तो लाइट जब आया, सतह से टकराया और टकराने के बाद लौट जाता है, तो कितना लौटेगा? तो कहा गया कि जिस एंगल से आएगा, टकराएगा, उसी एंगल से लौटेगा अपोजिट साइड में। यहाँ लाइट आ रहा है, टकरा रहा है, कैमरा में जा रहा है, आप देख पा रहे हो। कहीं से कोई लाइट आया सोर्स से, किसी ऑब्जेक्ट से टकराया, टकराने के बाद चारों तरफ जा रहा है, अलग अलग एंगल से आ रहा है, अलग अलग एंगल से जा रहा है, तो कुछ लाइट आपके आंखों तक आएगा। जैसा लाइट आपके आंख तक आएगा वैसा ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा। तो इसके लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कहा गया, एक आने वाले को हम इंसिडेंट रे कह दिया हमने, जाने वाले को रिफ्लेक्टेड रे हमने कह दिया, यानी आपतित किरण, आने वाली किरण। परावर्तित किरण, सतह से टकराने के बाद लौट गया, परावर्तित किरण। हिंदी वालों के लिए भी और इंग्लिश दोनों वालों के लिए ये वीडियो है यूजफुल। हम हिंदी में नहीं लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं। हिंदी बोल दे रहे हैं, आप लिख लेंगे, स्लो करके वीडियो देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो आने वाला जो किरण है वो इंसिडेंट रे है, जिसको हम कहते हैं अपवर्तित किरण, और जो लौटता है टकराने के बाद उसको कहते हैं परावर्तित किरण। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, और एक नॉर्मल होता है जिसको अभिलंब कहेंगे हम। तो नॉर्मल लाइन
तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही सरफेस के एक ही सतह पर एक ही बिंदु पर होते हैं। यानी कहा जाएगा आपतित किरण, परावर्तित किरण और नॉर्मल यानी अविलंब, खींचा गया अविलंब, नॉर्मल से खींचा गया अविलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी इंसिडेंस एंगल यानी आपतित कोण और परावर्तित कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर होगा। इसमें ध्यान रखने की वाली बात है, कुछ लोग एंगल ऐसे बना देते हैं, बच्चे गलती करते हैं, ये मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि नॉर्मल से ही डिसाइड होगा कि आने वाला कोण कितना है और जाने वाला कोण कितना है। यानी आपतित किरण किस एंगल से आ रहा है, जिस एंगल से आपतित किरण आएगा परावर्तित किरण उसी एंगल से लौट जाएगा। अगर हम एंगल बढ़ाते हैं तो ये एंगल भी बढ़ जाएगा। हम अगर इतना एंगल करते हैं, मान लिया ये 30 डिग्री है, इसको हम 60 करेंगे तो ये भी 60 हो जाएगा। तो कहा जाता है कि सतह से जितना एंगल पे आता है उतने एंगल पर लौट जाएगा। ये हो गया आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन का नियम। इतना ही है परावर्तन का नियम। अब एक बात इसमें है कि हम जानेंगे कि कितने तरह के मिरर होते हैं। तो सबसे पहले जो हम डेली यूज करते हैं, आप प्लेन मिरर का उपयोग करते हो, और एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है हमारे पास। तो प्लेन मिरर यहाँ पर बना हुआ है। तो प्लेन मिरर में ऐसा होता है, अगर हम इसी को मिरर चेंज कर दें तो उसमें मिलेगा नॉर्मल पे ऐसा होगा, नॉर्मल पे अगर हम एंगल ड्रॉ करेंगे तब भी वहाँ ऐसा होता है। तो प्लेन मिरर हमने यहाँ बना दिया है। मिरर हमारे पास 3 तरह का होगा। मिरर 3 तरह का है दर्पण, एक प्लेन मिरर है, दूसरा स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर जैसा कि नाम से लग रहा है, स्फेयर से बना हुआ है, स्फेरिकल मिरर, और ये प्लेन पॉलिश्ड सतह है वो प्लेन मिरर है। स्फेरिकल मिरर 2 तरह का होता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को कहा जाता है, हिंदी में अगर हम कॉनकेव को कहेंगे और कॉन्वेक्स को, पहले समझ लीजिए अंग्रेजी में क्या है। कॉनकेव यानी गुफा जैसा होगा और कॉन्वेक्स इसका उल्टा होगा। स्फेरिकल मिरर है क्या, एक स्फीयर का पार्ट होता है। एक स्फीयर अगर हम ऐसे बना दें, एक स्फीयर हम ऐसा बना दें तो इसमें क्या क्या चीज होगा सो देखिएगा। प्लेन मिरर में प्लेन सतह हम बना देंगे और पॉलिश कर देंगे तो प्लेन मिरर हो गया। स्फेरिकल मिरर में 2 है तो दोनों एक ही स्फेयर का भी पार्ट हो सकता है। अगर हम एक पार्ट को काट लें इस तरह से और अंदर से पॉलिश कर दें तो इसका रेडियस यहां तक होगा, इसको हम बोलेंगे ये C है जिसको रेडियस कहते हैं हम, और ये P है जिसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, और दोनों के बीच आधा जो पॉइंट होता है उसको हम फोकल लेंथ या फोकस कहते हैं। ये लेंथ फोकल लेंथ है और जो पॉइंट है वो फोकस है। ये 3 चीज इसमें मिलता है हमारे पास। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इसमें 2 चीज तरह का बन सकता है, इसमें से आप गोला में से एक काट लो तो गोला काटने के बाद आपको इस तरह का मिलेगा, या इधर से काटोगे इधर, एक ही बात है, जिधर से भी काटो क्योंकि स्फीयर तो चारों तरफ एक ही साइज का है। अगर आप अंदर से पॉलिश कर दोगे तो कन्वेक्स बन जाएगा क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो उठा हुआ है, और अगर बाहर से अगर आप पॉलिश करते हो तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस से ही ना लाइट लौटेगा। मिरर के पीछे खड़े हो जाओगे तो क्या दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा ना। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही मेन फैक्टर है। तो अगर पॉलिश किया हुआ है उसके दूसरे साइड से लाइट को हम डालेंगे तो एक कन्वर्ज होगा और एक फैल जाएगा, डाइवर्जेंट रे और कन्वर्जेंट रे बनेगा हमारे पास। तो कॉनकेव में गुफा जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, यानी ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। बाहर से आप अगर पॉलिश कर दिए तो ये मिलेगा। इसको आप यहाँ से काट करके हटा लोगे। हटा लेने के बाद भी कुछ चीजें नहीं बदलने वाली इसकी। क्या? तो C नहीं बदलने वाला
क्योंकि जितना बड़ा स्फेयर होगा उसी का वो पार्ट है, तो सी उतना ही रहने वाला है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना रहेगा उसी का आधा फोकल लेंथ हो जाएगा, तो ये नहीं बदलने वाला है। तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, फोकल लेंथ हो गया या फोकस हो गया, और इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, जिसको रेडियस इसको आप कह सकते हैं, है वो रेडियस ही। उसको जब हम ऑप्टिक्स में पढ़ रहे हैं और मिरर के बारे में, तो उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, कर्वेचर का वो सेंटर है। तो कॉनकेव गुफा की तरह ये वाला जो स्ट्रक्चर बनेगा ये आपका कॉनकेव में हो जाएगा, और ये जो स्ट्रक्चर बनेगा वो आपका कॉन्वेक्स होगा। हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में ही रखते हैं, इसीलिए हमने इस पे नहीं बनाया, इसी को उल्टा करके हम ऐसे लिखेंगे। ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखेंगे। हमारे पास साइन कन्वेंशन है, इसके बारे में मैंने बताया है, साइन कन्वेंशन में ये मिलेगा। अब इसी को हम कहते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। हिंदी में कहेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, और यह है समतल दर्पण। उत्तल दर्पण मतलब उठा हुआ तल। तो उठा हुआ तल कौन सा उठा हुआ होना चाहिए, आपको किससे मतलब है, तो पॉलिश सरफेस से, जहां से लाइट मुड़ेगा टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगा, आपको उससे मतलब है। पॉलिश किधर है इससे मतलब नहीं है, मतलब है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी परावर्तक सतह कैसा है, तो यहाँ देखिए परावर्तक सतह आपका उठा हुआ है, तो ये उत्तल हो गया। और परावर्तक सतह जो धंसा हुआ होगा, यानी ये जो स्ट्रक्चर है ये धंसा हुआ है, अवतल हो गया। और अगर ऐसे हम बात करें इसका, उठा हुआ है ये, तो ये उत्तल हो गया। यानी उठा हुआ तल है तो उत्तल है, और धंसा हुआ अगर तल है तो अवतल है। यानी इसके अपोजिट आपका पॉलिश किया हुआ रहेगा। उठा हुआ तल की बात करें तो ये हो गया, यानी पॉलिश इधर से रहेगा, ये उत्तल, ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे। अगर हम इसकी बात करें तो अवतल हो गया, पॉलिश इधर से। ये ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ्ट में रखेंगे। साइन कन्वेंशन ये कहता है, एक रूल फॉलो नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना। ऑब्जेक्ट को हम दाएं की जगह बाएं रखने लगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जब न्यूमेरिकल आप बनाते हैं तो उसमें आता है कि फोकल लेंथ नेगेटिव है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट को हम नेगेटिव रखते हैं, हमेशा ऑब्जेक्ट नेगेटिव ही होने वाला है। ऑब्जेक्ट हमेशा यू हमेशा नेगेटिव होगा। ये सब की भी हम चर्चा करेंगे, फिर हम फॉर्मूला डेराइव करेंगे इसका क्या आता है। तो ये हमारे स्फेरिकल मिरर का ये पार्ट था, और ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस था। कुल मिलाकर के एक स्फीयर में से कोई एक पार्ट काट लेंगे, हम स्लाइस कर लेंगे। फुटबॉल को इमेजिन कीजिए, फुटबॉल को आपने काट लिया है एक स्लाइस कहीं से, और उसको फिर आपने पॉलिश कर दिया, मेटल का है उसको आपने अगर पॉलिश कर दिया, तो मेटल का होना क्या जरूरी नहीं है, कुछ भी हो, किसी तरह का लकड़ी का होगा तो क्या नहीं होगा, पॉलिश हो जाना चाहिए। कुल मिलाकर के पॉलिश होगा, रिफ्लेक्शन होगा, तो आपके पास स्फेरिकल मिरर मिलेगा आपको इस तरह से। तो ये तो बात हो गई स्फेरिकल मिरर की और रिफ्लेक्शन की। अब रिफ्लेक्शन में होता है, हम जो पढ़ते हैं कि डायग्राम बनाते हैं हम साइन कन्वेंशन के अनुसार। तो अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर में 6-7 कंडीशन है हमारे पास, कॉन्वेक्स में तो है नहीं, 1-2 कंडीशन है। कॉनकेव मिरर में या कहीं पर अगर इमेज का फॉर्मेशन करना है तो उसका बेसिक रूल है, उस बेसिक रूल को फॉलो करेंगे ना तो अपने आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे जहां पर इमेज उसके अनुसार बन जाएगा। जबरदस्ती नहीं बनाना है कि हाँ हम यहीं रखेंगे तो यहाँ बनेगा ही बनेगा, ये तो ठीक है, जो है रूल वो तो बनना ही है, लेकिन इसको याद नहीं करना है बल्कि बनाना है। बनाने के बाद ऐसा नहीं कि रूल था उसके बाद ये आया, ऐसा नहीं है। बना, इमेज बना तो हमने लिख दिया कि ऐसा होता है। रूल क्या कहता है इमेज फॉर्मेशन के लिए कि ये आपका है कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट को साइन कन्वेंशन के अनुसार लेफ्ट में ही रखना है। सब कोई लेफ्ट में रखता है, रखना ही पड़ेगा, रूल है ये। बाएं चलना है रोड पे तो बायां ही नहीं चलेंगे, दायां चलने लगे तो एक्सीडेंट होगा। जो रूल बना हुआ है इसको फॉलो करना चाहिए। अब दाहिने रखने लगेंगे, आप यू रखेंगे प्लस में, कोई रखेगा माइनस में, तो न्यूमेरिकल गड़बड़ हो जाएगा ना। इसीलिए कह दिया गया कि नहीं, सब ऑब्जेक्ट को आप लेफ्ट में ही रखो। फोकल लेंथ हमेशा इसका माइनस में ही होगा, अगर इसका उल्टा जो कन्वेक्स है इसका फोकल लेंथ प्लस में होता है, क्योंकि इसका सी भी तो प्लस में है, इधर से हमने पॉलिश कर दिया है, तो देखिए सी इधर है तो एफ भी उधर होगा। पर इधर में इसका जो स्फीयर है ऐसा स्फीयर है, तो स्फीयर इस तरह का है तो सेंटर किधर है, लेफ्ट में ही है, तो माइनस में ही होगा। इसमें प्लस में है सेंटर, इसलिए प्लस होता है फोकल लेंथ उसका, आर और एफ दोनों। तो या इसका रूल क्या है कि हाँ चलो यहाँ पर बना लेते हैं हम एफ और एक बना लेते हैं सी, और ये पी है।
इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन है पी के पास प्रिंसिपल एक्सिस है। एक्सिस जानते हैं, लाइन खींच दिया एक्सिस है कोई भी, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब कहा गया कि प्रिंसिपल एक्सिस के अगर समानांतर कोई किरण आ रहा है, कोई लाइट आ रहा है, तो टकराने के बाद एफ से होके जाएगा, ये रूल बनाया गया। और जैसा मुड़ रहा है उसके अनुसार तो आएगा ही। प्लेन मिरर होता तो सीधा ऐसे रिटर्न हो जाता वही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन पे जाता, उस जिस एंगल से जाता उसी एंगल से लौट जाएगा। 90 डिग्री पे जाएगा तो 90 डिग्री लौट जाएगा। तो ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, तो एफ से होकर के जाएगा, इनफाइनाइट से आने वाला किरण। और दूसरा रूल क्या है इसमें, अगर एफ से कोई किरण आ रहा है, ये एफ हो गया और सी हो गया। अगर एफ से कोई किरण जा रहा है, इसका उल्टा, जब अनंत से आ रहा है इनफाइनाइट से तो एफ से होकर के जाएगा, और अगर एफ से जा रहा है ऐसे भेज दीजिए, तो दर्पण से टकराने के बाद, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद, किस केस में, कॉनकेव के बारे में बता रहे हैं, क्या हो जाएगा, जैसा ये हुआ था उसका उल्टा यहाँ है। जब इनफाइनाइट से आया तो एफ से जाएगा, और जब एफ से गया तो इनफाइनाइट यानी पैरेलल। पैरेलल जाना मतलब इनफाइनाइट, सीधी सी बात, पैरेलल अगर है तो इनफाइनाइट है, मिलेगा वो इनफाइनाइट पे। पैरेलल के बारे में कहाँ ही जाता है, पैरेलल रेखा कहाँ ही तो इनफाइनाइट पे मिलता है। तो अगर पैरेलल कोई आ रहा है यानी इनफाइनाइट से चला आ रहा है वो, तो इनफाइनाइट से आया या पैरेलल आया, दोनों केस में एफ से होगा। तब हम कहते हैं कि एफ पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे, क्योंकि इनफाइनाइट पे जा रहा है वो, पैरेलल हो गया। और कहा जाता है कि अगर इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब पैरेलल रे आ रहा है, तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। यही तो है कॉन्सेप्ट। ये दूसरा, अगर हम सी की बात करें, एक ऑब्जेक्ट सी से होकर के जाएगा, तब क्या होगा, कोई दो रे किसी पॉइंट पे कटना चाहिए, कोई दो, चाहे इस दोनों कंडीशन से, या तो फिर हम अगर सी वाले कंडीशन से बात करें, पी है, एफ है और सी है, तो इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट जब हम बनाते हैं हमारे पास इमेज फॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट आता है, उसमें तीसरा पॉइंट हमारे पास बनता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट जाएगा तो कहाँ होना चाहिए। आप ये भी मान लीजिए ना कि यहाँ से सी से ऐसे जाएगा तो लौट जाएगा कि नहीं लौटेगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट अगर जा रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि मुड़ान उतना ही है, इसीलिए सेम पॉइंट पे आ जाएगा, यानी उतना ही मुड़ा हुआ ये पॉइंट मिलेगा। उसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये, तो सब रेडियस है, सब रेडियस है, तो प्लेन मिरर की जैसा हो गया। या तो कहिए कि प्रिंसिपल एक्सिस से होकर के जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस पे रिटर्न हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है सब प्लेन की तरफ फंक्शन कर रहा है, प्लेन मिरर की तरफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस जैसा है वो, क्योंकि यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर का लाइन यहाँ पर भी है। प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगा, यहाँ पर कोई लाइट जाएगा तो लौटेगा ना उसी में, इसीलिए कहा जाता है कि सी से होकर के कोई लाइट अगर जा रहा है तो सी पर रिटर्न हो जा रहा है। यानी ये तीनों में से कोई एक पॉइंट छोड़ करके कोई दो पॉइंट अगर मिल जाए, कटान बिंदु जहां मिल जाए, कट जाए दो लाइट, तो कहेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन हो गया। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखते हैं, इनफाइनाइट पे रखते हैं तो इनफाइनाइट पे क्या होगा, तो पैरेलल रे, इनफाइनाइट मतलब पैरेलल, तो ये एफ हो गया और ये सी हो गया। लाइट को यहां से लाते हैं, रूल हमने क्या कहा कि पैरेलल जो रे आ रहा है वो कहां से जाएगा, एफ से। क्लियर बात। एक और रे हम चाहें तो हम ले आ सकते हैं, यहां से भी ला सकते हैं, इधर से, ये किधर जाएगा, ऐसे पैरेलल, तो यहां पर बन गया एफ पर। यानी जब ऑब्जेक्ट कहां है, तो एट इनफाइनाइट, तब के केस में इमेज का क्या है, इमेज एट एफ, और इनफाइनाइट में बहुत बड़ा था तो छोटा बन जाएगा, और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा।
हमेशा इस केस में कॉनकेव की हम बात करें तो वही मिलता है हमारे पास, क्या तो ये बन जाएगा, रियल हो जाएगा हमारे पास, एक पर होगा, रियल होगा, पॉइंट साइज होगा, पॉइंट साइज बनेगा ये सारा। अगर हम इसी का उल्टा कर दें, एक पर रखेंगे तो इनफाइनाइट पे बनेगा। एक और केस ले सकते हैं, अनंत से जब हम आएंगे तो सी की तरफ, ऑब्जेक्ट को हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे, एफ हो गया और सी हो गया। ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं सी के बाहर, तो सी के बाहर कहा जाता है कि इनफाइनाइट और सी के बीच। तो देखिए क्या क्या हो सकता है, यहाँ से भेज दिए हम पैरेलल, पैरेलल कहाँ से, एफ से ऐसे आएगा। और क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, और क्या कर सकते हैं, क्या सी से होकर के जाएगा, हाँ सी से होके जाएगा, सी से होके जाएगा और लौट आएगा उसी पे, जिस डायरेक्शन में जाएगा। तो क्या मिलेगा हमारे पास, कहेंगे सी और एफ के बीच बना। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सी पे अगर हम रखते हैं, मतलब कि जबरदस्ती नहीं बना देना है, खुद से बन जाएगा इमेज। हम एक स्केल ले लेंगे, अगले टाइम बोर्ड पे आप लोगों को स्केल से बताएंगे, बड़ा सा उसके लिए प्रकार लाना होगा और तब बनेगा इमेज, रियल में अपने आप इमेज बन जाएगा। अगर हम रख देंगे ऑब्जेक्ट को, एफ हो गया, सी हो गया, सी पे हम रख दिए तो कहाँ बनेगा, सी पे बनेगा। कैसे बनेगा देख लीजिए, यहाँ से आया, एफ से ऐसे होगी तरह। और एक लाइट कहाँ से आना चाहिए, हमारे पास यही तीन कंडीशन है, इसमें दो फुलफिल होना चाहिए, एक कटान पॉइंट बनना चाहिए, कटना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, यहाँ से सी से तो हो गया काम, और क्या संभावना है, और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से आया, चलिए यहाँ से गुजर गया, क्या सी से, ऑब्जेक्ट को सी पे रख रहे हैं, क्या सी से लाइट जा सकता है, सी से लाइट कैसे जाएगा, ये अगर इस तरह का होगा तो सी से लाइट जाने का मतलब ऑब्जेक्ट का यहाँ कटना चाहिए ऐसे। क्यों कटेगा, कैसे कटेगा, जबरदस्ती नहीं काटना है, इसको ले आए यहाँ। दूसरा एफ से, सीप से नहीं गुजरने वाला है, यहाँ नहीं दिख रहा है, ऐसे ही कहा जा सकता है कि हम ऐसे काट देंगे सीधा, यहाँ से रिटर्न होकर के चला जाएगा, ये भी हो सकता है। हम एफ से गुजरते हैं, अब पैरेलल एक ले गया, दूसरा एफ से ले गए, एफ से ऐसे ले गए, यहाँ से जाने के बाद देखिए कहाँ कट रहा है, अपने आप यहाँ कट रहा है, हमने जबरदस्ती नहीं काटा है। इसका ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा, तो सेम साइज होगा, इन्वर्टेड तो होना ही है, इन्वर्टेड होना ही है, उल्टा होगा ही, चाहे वो कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर में से कोई भी हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको मानते हैं, ये हमने देख लिया। हमारे पास अगर एक स्फेयर है, स्फेयर को हमने कहीं से एक पॉइंट काट लेंगे, कोई छोटा सा टुकड़ा काट लेंगे इसमें से, तो उसको अगर पॉलिश कर देते हैं इसको काट करके, तो ये बन जाता है आपका मिरर। तो इसका मतलब कि जिस गोले का ये भाग है, उस गोले का जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, जिसको हम यहाँ पर सी कह रहे हैं, वो चीज़ है। ये एक पूरा एक स्फेयर है, स्फेयर का ये सेंटर है, सेंटर मतलब तो ये रेडियस हो गया, रेडियस को ही हम सी कहते हैं। यहाँ वहाँ गोले में वो रेडियस था, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या इसीलिए कहा गया। तो इसके लिए हमने रूल बता दिया है पिछले क्लास में कि जब भी कॉनकेव मिरर की बात होगी तो उसके लिए लाइट आना जरूरी है, 3 पॉइंट से आता है, जिसमें 2 पॉइंट मस्ट है। 3 पॉइंट कहने का मतलब, अगर लाइट इनफाइनाइट से आ रहा है तो टकराने के बाद एफ से जाएगा, पहला कंडीशन। दूसरा, अगर लाइट सी से आ रहा है, सी से अगर आएगा तो सी पर लौट जाएगा। ये सब चर्चा हो गया है पिछले क्लास में। अगर एफ से लाइट जा रहा है तो दर्पण से टकराने के बाद, मिरर से टकराने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद, लड़ाई झगड़ा करने के बाद कहाँ से जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। यानी एक इनफाइनाइट से आ रहा है तो एफ से गुजर जाएगा, इनफाइनाइट से आ रहा है एफ से गुजरेगा,
इनफाइनाइट से आ रहा है, एफ से गुजरेगा। यहाँ पर अगर हमने एक ऑब्जेक्ट इमेजिन कर लिया है कि इनफाइनाइट पे है, तो उसका पोजीशन क्या होगा, फोकस पे। और ये सभी 5 केसेस में रियल और इन्वर्टेड होने वाला है। रियल इमेज कब होगा, जब जिस ओर आपने ऑब्जेक्ट रखा है उसी ओर इमेज बन रहा है, या कह सकते हैं कि सही में अगर 2 लाइन कट रहा है, 2 लाइन मतलब 2 रे अगर सही में किसी बिंदु पर कट रहा है तो वो रियल होगा। और इन्वर्टेड इसलिए होगा कि उल्टा बनने वाला है। अभी हम देख रहे हैं सेकेंड केस में, फर्स्ट केस हमने देखा इनफाइनाइट पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। तब ना सोलर कुकर में भोजन बनाना होता है तो कौन सा मिरर लगाते हैं, इनफाइनाइट पे सन है, अब उससे गर्मी चाहिए, रोशनी चाहिए, तो ज़्यादा हीट कब मिलेगा, तो फोकस पे मिलेगा, क्योंकि सारा लाइट कहाँ पे चला जा रहा है, फोकस पे केंद्रित हो जा रहा है, पैरेलल सारा लाइट। तो मिरर से कुकर को कहाँ पर रखा जाता है, तो फोकस पे रखा जाता है, क्योंकि सारा पैरेलल जो रे आए वो एक फोकस पे जाता है। कागज आप जलाते हो, लाइट सनलाइट से सन के पास ले जाते हो, और फिर कागज जलाने के लिए कौन सा, कॉनकेव मिरर का, तो कॉनकेव मिरर को आप फोकसित करते हो कागज पे, लाइट का इमेज जो बनता है सन का, वो लाइट आया, इमेज बनाया, तो कहाँ पे जलेगा कागज, जब फोकस पे रखोगे तो छोटा सा पॉइंट बनता है, वो आप लोग करते हैं सब। तो इनफाइनाइट से आने वाला किरण कहाँ मिला, एफ पर मिला, तो हम कहाँ कह देंगे ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बना, फोकस पे। ऑब्जेक्ट कैसा होगा, रियल होगा, क्योंकि सच में ही आगे कट रहा है, कटता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है, एक केस में कटता हुआ प्रतीत होगा, ऐसा होगा लग रहा है कट रहा है, रियल में नहीं कट रहा है। तो सही में अगर आगे कट गया, डॉटेड लाइन तो है नहीं, तो सही में कट रहा है ये, तो रियल होगा, पॉइंट साइज होगा, छोटा होगा। सन बड़ा सा है, उसका इमेज बनता है छोटा सा कागज जलाने में, वही इमेज जला देता है किसको, कागज को। तो सोलर कुकर जो होता है ना, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। बहुत सारे ऐसे लगा दिए जाते हैं मिरर, कॉनकेव मिरर, और सबका फोकस कहाँ होता है, कुकर पर, सबका फोकस कुकर पे होता है, इतना नज़दीक रख दिया जाता है कि कुकर पे ही सारा फोकसित पॉइंट बने, सारा फोकस कहाँ बने, कुकर पे बने, तो कुकर गर्म होगा तेजी से, क्योंकि छोटा सा सन बन गया, वो बड़ा सा सन हुआ है, उससे इमेज आया, छोटा सा सन बन गया, तो गर्म कर देगा तेजी से। दूसरा पॉइंट देखिएगा, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, अनंत पे हो गया, अब अनंत से थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या मिलेगा रास्ते में, सी मिलेगा, और सी के पहले क्या होगा, तो दोनों के बीच, अनंत और सी के बीच पहले, उसके बाद सी की ओर बढ़ेंगे। तो देखिएगा यहाँ वही कंडीशन, पैरेलल भेज दिया हमने, कहाँ से जाएगा, तो सी से होकर के चला जाएगा, टकराने के बाद, दर्पण से जब लड़ाई करेगा तो लड़ने के बाद सी से होकर के अपने आप चला गया। और क्या इसमें होगा, सी से जाएगा क्या, तो हाँ सी से जाने वाला है, सी से हमने भेज दिया इसको, सी से जाने के बाद फिर से सी पे रिटर्न हो जाएगा, इमेज का फॉर्मेशन हो गया, जहां पर 2 ठो रे कटा। आप इसको ना सही से बनाइएगा, स्केल से मेजरमेंट कर लीजिएगा, आप एक सर्कल बना लीजिएगा 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर कुछ भी, और उसके हाफ पे एफ रख दीजिएगा, और सेंटर को सी बना लीजिएगा, और इमेज रख के स्केल से आप स्ट्रेट काटिएगा, तो अपने आप इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती यहाँ मिला ही देना है, ऐसा नहीं है, जबरदस्ती नहीं मिलाना है। रूल है एक कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा फोकस से जाने दीजिए, तीसरा सेंटर से जाने दीजिए, दोनों में से कोई 3 पॉइंट हमने बताया, तीनों में से कोई 2 फॉलो होगा तो एक कटिंग पॉइंट बनेगा, वही कटिंग पॉइंट इमेज का फॉर्मेशन करता है। तो इसका साइज की अगर हम बात करें तो कैसा बन रहा है, स्मॉल साइज बन रहा है, और इमेज कहाँ पे बन रहा है, रियल, इन्वर्टेड और स्मॉल साइज बन रहा है। और पोजीशन क्या है इमेज का, देखिए सी और एफ के बीच, यानी बिटवीन सी एंड एफ। इसके बाद वाला थर्ड पोजीशन देखिए, सी पे हमने रखा है, ऑब्जेक्ट को सी पे रखें, तो सारा चीज वही करने वाले हैं। यहाँ पर भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट को जाने दिए, टकराने के बाद कहाँ से जाता है, सी से, चलिए सी से ले आइए इसको, यहाँ ले आए, एक रे हो गया, और कोई रे आएगा,
सी पे हमने रखा है, तो और कोई रे आएगा क्या? विचार कीजिए। या तो आप अगर पी से भी ले जा सकते हैं तो फिर आकर के यहीं कटेगा। तो यहां पर एक और रे ले जाइए। सी से तो यहां जाने वाला है नहीं क्योंकि सी पर ही रखा हुआ है, तो एफ से आप ले जाइए इसको। एफ से जाने के बाद किधर जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। कहां कटा? सी पर। पैरेलल जो जा रहा था प्रिंसिपल एक्सिस से वो एफ से गुजरेगा, और जो एफ से जाएगा वो कहां हो जाएगा? तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो कटिंग पॉइंट कहां बना? इस पॉइंट पे। ये हो गया, ये बी हो गया। इसका इमेज को कहा जाता है ए डैश बी डैश, ऐसे बोला जाता है। यहाँ ए बी है, यहाँ ए डैश बी डैश है। बस इतनी सी बात। अब इसका क्या होगा? बना कहाँ? तो एट सी, सी पर ही बन गया। सी पर ऑब्जेक्ट था, सी पे बना। रियल बना, इन्वर्टेड बना, और साइज क्या होगा? तो सेम साइज है। आपको जो दिख रहा है वही लिखना है, इसको याद नहीं करना है। आप इसको समझ लीजिए तो ये अपने आप बना देंगे। कोई जरूरी नहीं है कि हर बात को याद किया जाए। जो समझने वाली बात है उसको समझ लिया जाता है, याद अपने आप हो जाएगा। आपको दिमाग में कैलकुलेशन कर लोगे, या फटाफट आप 2 सेकंड में डायग्राम बना लोगे और तब जान लोगे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो यहाँ पर बना। फिर न्यूमेरिकल बनाएंगे तो वहां पर भी ये काम आएगा। ऑब्जेक्टिव में अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो आप जान लोगे कि अच्छा इमेज यहाँ है तो ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, या ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज यहाँ पर होगा। दोनों आता है। भी दिया हुआ है यू निकालिए, यू दिया है भी निकालिए, एफ साथ में दिया रहेगा। अब सी और एफ के बीच हमने रख दिया है। देखिए सी और एफ, टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से ही ये सब पोजीशन हमने बना दिया है कि बी ऐसा ऐसा रख रहे हैं। तो बिटवीन सी एंड एफ क्या होने वाला है? पैरेलल जाएगा एक लाइट। चलिए पैरेलल गया, कहां से आएगा रिटर्न? टकराने के बाद एफ से चला आया। अब क्या होने वाला है? क्या एफ से भी लाइट को भेज सकते हैं? बिल्कुल भेज सकते हैं। क्या सी से भेज सकते हैं? हाँ, सी से भी भेज सकते हैं हम। दोनों पॉइंट यहां पर बनता है, या तो आप सी से भेज दीजिए या एफ से भेज दीजिए, यानी दोनों सिचुएशन यहां पर आप बना सकते हैं। आप यहां से एफ पर लाएंगे और फिर पैरेलल कर देंगे, या तो ये, या तो इसको सी से जाने दीजिए। सी से भी जा सकता है ना, सी पे था तब सी से नहीं जा रहा था, सी के पहले था तब भी सी से ले जा सकते थे, सी के बाद है तब भी सी से ले जा सकते हैं। एक आता हुआ ऐसा प्रतीत होगा आपको। या इसको अगर आप बनाना चाहो तो देखिए ऐसा होगा, यहां से ऐसे जाकर टकराया और टकराने के बाद लौट गया। सच में लौटा ना, लौटा हुआ दिख नहीं रहा है, लौट नहीं रहा है वो टकराने के बाद। क्योंकि देखिए लाइट सब जगह ना जाएगा, ऐसे 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 हर जगह, यहाँ 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 सब जगह। आप फिगर ऐसे ही बना सकते थे, यहाँ 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 अगर आप भेजते तो ये ऐसा करके कट करता, तो सी और एफ के बीच बन जाता है ये। तो एक तो कि ऐसे करके इसको आप स्ट्रेट आप लाइएगा इसको, तो एक कटिंग पॉइंट बनेगा। कहां पर बना? बड़ा सा बना, इन लार्ज। ये और क्या बना सकते थे? एक और फिगर बना लेते हैं ना इसका एक और फिगर हम बना लेते हैं। ये समझ लीजिए, यहाँ पर बोर्ड नया है, मिटाने में थोड़ा दिक्कत है, ऐसे मिट नहीं रहा है, इसीलिए हम मिटा नहीं रहे हैं इसको जल्दी से। तो ये देखिए यहाँ पर अगर हमने रखा एफ है, ये सी है, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो एक तो ऐसे भी बना सकते हैं, इसको हम एफ से ले जाएंगे ऐसे, चलाया। और क्या, एफ से हम ऐसे लाएंगे ऐसे, और इसको ऐसे लाएंगे तो ये कट रहा है, ये सी होगा, और ये जो कटेगा सी के बाहर कटेगा, सी और इनफाइनाइट के बीच। तो या तो ऐसे बना ले या ऐसे बना ले, ये भी हो सकता है। ये भी इमेज का फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि एफ से भी जा सकता है ना, एफ पर तो है नहीं, एफ से भी जाएगा, एफ से होकर के जाएगा तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, और पैरेलल जाएगा तो एफ से होकर गुजरेगा। तो जो कट पॉइंट बन रहा है वो सी के बाहर बन रहा है, तो सी के बाहर जो होगा वो सी और इनफाइनाइट उसका नाम दे देंगे। और कैसा होगा? रियल होगा, सच में कट रहा है इसलिए रियल होगा। और कैसा होगा? इन्वर्टेड तो होना ही है,
क्योंकि ये ऊपर था तो नीचे हो गया, ऊपर था नीचे हो गया, इन्वर्टेड हो गया, उल्टा हो गया। तो उल्टा हो गया, वास्तविक और उल्टा सभी केस में है। एक केस में वास्तविक उल्टा नहीं है, एक है आभासी है और उसी साइड में सीधा है, आभासी और सीधा हो जाएगा, यानी इरेक्ट हो जाएगा और वर्चुअल हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। बाकी केस में आप देख रहे हैं कि सब छोटा हो रहा है या सेम साइज हो रहा है, यहां तक, यहाँ छोटा था, थोड़ा सा और छोटा से थोड़ा बड़ा हुआ, छोटे से थोड़ा बड़ा हुआ, पॉइंट साइज था, स्मॉल साइज हुआ, फिर सेम साइज हुआ, फिर बड़ा हुआ और बहुत बड़ा हो जाएगा, इनफाइनाइटली लार्ज होने वाला है। देखिएगा यहाँ से पॉइंट साइज था, जैसे जैसे इनफाइनाइट से ऑब्जेक्ट को नजदीक लाने की कोशिश करेंगे, इनफाइनाइट पे पॉइंट साइज, इनफाइनाइट से सी और एफ के बीच आया तो थोड़ा और बड़ा, स्मॉल साइज हुआ, पॉइंट साइज से स्मॉल साइज हुआ, फिर और नजदीक सी पे आ गए तो स्मॉल से अब इक्वल हो गया, फिर सी के बाद सी और एफ के बीच आ गए तो थोड़ा बड़ा हो गया, लार्ज हो गया, फिर एफ पर आ गए तो इनफाइनाइटली लार्ज हो गया, बहुत बड़ा हो गया। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप इनफाइनाइट से ऑब्जेक्ट को लाओगे एफ की तरफ, बढ़ता जाएगा, वो साइज उसका बढ़ता जाएगा, इन लार्ज होता चला जाएगा। इवन आप अगर एफ के नजदीक भी अगर आप रखोगे तो भी और साइज बढ़ेगा, यानी जैसे जैसे पी की तरफ आप ला रहे हो इनफाइनाइट से, वस्तु का साइज बढ़ रहा है, ये आपको याद रखना है। फिर अगले केस में देखिए क्या होने वाला है, इसको ना स्केल से आप बनाएंगे, कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट करना है, 2 सेंटीमीटर तो 2 सेंटीमीटर ही लिखना है ज्योमेट्री से, और उसके बाद आप रे डायग्राम बनाओगे। तो जो रूल है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाना है और एफ से ले जाना है, सी से ले जाना है, कोई दो ठो रे जो है किसी एक पॉइंट पे कटना चाहिए, वो करोगे तो अपने आप सिस्टमेटिकली आपको रे डायग्राम बन जाएगा और सही बनेगा। वैसे एक सर्कल बना करके जरूर बनाइएगा आप लोग पेन पेपर पे, बोर्ड पे थोड़ा करना प्रॉब्लमेटिक होता है, सारा सिस्टम चाहिए बड़ा साइज का, तब तो होगा। अब इसके बाद एफ और सी, पी की हम बात करें, पी एफ सी है। आप देखिए कहां पर रखा है हमने ऑब्जेक्ट को, एफ पर, एफ पर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। क्या होने वाला है, जब एफ पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो क्या होगा, बहुत बड़ा बनेगा। जब इनफाइनाइट था तो कहां बना, एफ पर, तो एफ पर तो इनफाइनाइट होना चाहिए ना, सब कुछ बराबर होता है यहाँ पर, जैसा करोगे वैसा मिलेगा, और उसके अनुसार यहां पर भी हो रहा है वही चीज। आप ऐसे कर दो, पैरेलल ऐसे भेज दिए हम, एफ के पैरेलल, मिलेगा क्या हमें, वो लौटने वाला है, एफ से लौटेगा, क्या लौट गया एफ से। अब एक और चीज है, ये सी को आप ऐसे मिला दीजिए यहां से, ये कहीं मिलने वाला नहीं है, ये दोनों लाइट, ये दोनों रे कहीं में नहीं मिलने वाला है, तो इसको हम कह देंगे इमेज कहां बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा। इनफाइनाइट पे बनेगा भी या नहीं बनेगा, इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर, हमारे पहुंच से दूर है तो इनफाइनाइट है, अनंत पे बन रहा है वो इमेज, तो इनफाइनाइट पे इमेज बना, क्योंकि पैरेलल रे इनफाइनाइट पे ही मिलता है और जहां मिलेगा वहीं इमेज बनेगा। क्योंकि हमने कहा ना कि जब दो रे मिलेगा, जो कटान पॉइंट बनेगा, जो कटिंग पॉइंट बनेगा, जो इंटरसेक्ट जहां पर करेगा वहां इमेज बनेगा। तो ये कहां पर कटिंग करने वाला है, इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट पे मिलते हैं, दो पैरेलल लाइन कहाँ मिलते हैं, इनफाइनाइट पे, तो इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे। और कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, देखने थोड़े जा रहे हैं कोई, बहुत बड़ा बनेगा इनफाइनाइट पे। और जैसे सन है ना, सन तो यहाँ से भले ही छोटा दिख रहा है पर बहुत बड़ा है, इनफाइनाइटली लार्ज है, अर्थ से भी बहुत बड़ा है, उसका इमेज हम यहाँ पर बना देते हैं, छोटा सा बनता है, तो ये भी जाएगा तो हो सकता है बड़ा हो जाए। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रखेंगे बहुत दूर चला जाएगा, तो इनफाइनाइटली बनेगा, लार्ज बनेगा। जैसे एक बल्ब है, बल्ब को हम फोकस पे रखते हैं, इसकी हम बात करें, बल्ब को फोकस पे रखते हैं, कौन सा बल्ब, जो हेडलाइट होता है, बाइक का हेडलाइट में यूज किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है हर कंपटीशन में कि कहाँ पे रखा जाता है हेडलाइट में, बल्ब कहाँ पर होता है, और ये भी पूछता है कि हेडलाइट में कौन से मिरर का उपयोग, कौन से परावर्तक सतह का उपयोग किया जाता है। तो वहां पर आंसर क्या होगा, कॉनकेव मिरर का उपयोग किया जाता है, गुफा वाला, गुफा वाला देखोगे ना, एकदम गुफा की तरह रहेगा और उसमें बल्ब लगा रहेगा छोटा सा, वो बल्ब का इमेज बनता है बड़ा सा,
वो बल्ब जो जल रहा है ना उसके अंदर, वो दूर जा करके बहुत दूर बनाता है और बड़ा सा इमेज बनाता है, तब ना आपको रोशनी दिखता है, ज़्यादा रोशनी दिखता है। बल्ब का आकार थोड़े वहाँ पर चला जाएगा। बल्ब का आकार क्या है, लाइट जो निकल रहा है वही ना उसका आकार है। उसके फिलामेंट से क्या मतलब, जो रोशनी निकल रहा है वही ना आकार है। तो छोटा सा रोशनी निकल रहा है उसके अंदर, वो बड़ा सा रोशनी आपको दिखेगा, यानी दूर तक फैला हुआ रोशनी आपको दिखेगा। तो यूज किया जाता है यहाँ पर कॉनकेव मिरर का, और फोकस पे रखा जाता है बल्ब को। ये आपका हेडलाइट है, हेडलाइट में ये बल्ब यहाँ पर रखा गया है। ये बल्ब जब जलता है तो दूर तक पैरेलल भेजता है, पैरेलल लाइट भेजता है ये, तो इसीलिए दूर तक आपको देखना आसान हो जाता है इसी से। तो इनफाइनाइट पे होगा, इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा, रियल बनेगा, बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, इनफाइनाइटली लार्ज होगा, इन्वर्टेड तो होना ही है क्योंकि उसी साइड बन रहा है जिस साइड है ये। अब एक लास्ट इसमें ये पॉइंट है कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है P और F के बीच, तब क्या होने वाला है। जब P और F के बीच आप रखेंगे तो सारा चीज वही फॉलो करना है जो अभी तक करते आ रहे हैं। F से यहां पर आता हुआ आपको महसूस होगा, एक F से आएगा और दूसरा C से, बात हो गया कंप्लीट। यहां से ये जाएगा F, तो अब यहां से तो रिटर्न होने वाला कुछ है नहीं लफड़ा, यहाँ जाकर के चलिए ठीक है। अगर हम पैरेलल भेज भी दे रहे हैं तो पैरेलल जाने वाला कहाँ जाता है, पैरेलल अगर हम लाइट भेजेंगे तो क्या होगा, वो पैरेलल लाइट अगर हम भेजेंगे और वो टकरा गया, क्या होने वाला है, एफ से होके जाने वाला है, एफ से चला आया। और क्या हो सकता है यहाँ पर, और एक लाइट चाहिए ना, सी से भी तो चाहिए, तब ना कटेगा। तो यहां से ये लाइट ऐसे गया और ये सी से आता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा क्या है ना, कैलकुलेशन अगर हम सही करेंगे सेंटीमीटर का, तो सही से अगर देखेंगे तो ये सही डायग्राम बनने वाला है स्केल से मेजरमेंट करके। तो ये ऐसा लगेगा कि ये आ रहा है कहां से, ऐसे ऐसे आ रहा है। ये जो दो लाइट हमको दिख रहा है वो ऐसा महसूस होगा कि आ रहा है इस पॉइंट से, यानी यहां मिलता हुआ प्रतीत होगा, फील करेंगे हम कि जो इमेज है या जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पर है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज में क्या होता है, ऑब्जेक्ट कहीं होता है तो उसका इमेज बनता है, ऑब्जेक्ट ही तो आपको दिखता है पर उसको इमेज कहते हैं। आप मिरर के सामने खड़े हो गए तो आपका अपना इमेज आपको दिख रहा है, वैसा ही ऑब्जेक्ट जैसा ही। तो ये बड़ा सा दिखेगा, ये जो भी चीज आपने रखा है ये बड़ा सा दिखेगा, पर कहां दिखेगा, पीछे, बिहाइंड द मिरर दिखेगा। तो बिहाइंड द मिरर मतलब आभासी, आभास होगा कैसा है, क्योंकि डॉट डॉट लाइन, आभासी को क्या, डॉट डॉट लाइन। तो डॉट डॉट लाइन से इसको हम रिप्रेजेंट कर दिए, ऐसा महसूस होगा कि लाइट वहां से आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा, बड़ा है, इरेक्ट है, यानी जिस डायरेक्शन में ये था पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव में ही है, उल्टा तो हुआ नहीं, तो इन्वर्टेड होगा नहीं, यानी वर्चुअल, इनलार्ज और इलेक्ट होगा और बिहाइंड द मिरर होगा। ये आपके पास था मिरर का, कॉनकेव मिरर का स्थिति, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इमेज कहाँ पर बनेगा। हमारे लिए ये बेनिफिशियल है कहने के लिए सारा कुछ बेनिफिशियल है, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयोग अगर हम करते हैं तो एप्लीकेशन हमारे पास ये है। डॉक्टर लोग इसका उपयोग करते हैं। बल्ब यहाँ पर है, दूर है, सी से बाहर है ना, सी से बाहर है, तो आप उसको इनफाइनाइट भी कह सकते हो, बहुत दूर है सी से। तो फोकस पे आप उसका इमेज चाहते हो, दांत देखना होता है डेंटिस्ट को, तो बल्ब जलते रहता है और यहाँ पर वो कॉनकेव मिरर लगाए रहते हैं, कॉनकेव मिरर से लाइट आता है, टकरा करके दांत पर फोकसित कर देता है, ढेर सारा रोशनी है, छोटा सा पॉइंट करके रोशनी को दांत के पास जहां जरूरत होता है वहां भेज देता है। तो अगर एक जगह पर लाइट को केंद्रित करना है तो आप इसका उपयोग करते हो, कॉनकेव मिरर का। हेडलाइट में यूज है कॉनकेव मिरर का,
अगर साइड लाइट की हम बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर का, क्योंकि अगर हम इसका उपयोग कर देंगे तो काफ़ी लफड़ा हो जाएगा, सब उल्टा उल्टा दिखने लगेगा, उल्टा भी दिखेगा और जहाँ इमेज बनना चाहिए वहाँ इमेज नहीं बनेगा। दूर का इमेज, इनफाइनाइट का इमेज वो बना देता है और सीधा बनाता है, और यहाँ कई तरह का इमेज बनाने वाला है, फिर ये कभी सी पे बनाएगा, कभी सी और एफ के बीच बना देगा। तो ये समस्या है यहाँ पर कि हम इसमें इसका उपयोग, अब इसका उल्टा जो हमारे पास एक और इमेज होता है जिसको हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का बेनिफिट है कि ऑब्जेक्ट को जहाँ पर भी रखिए वो फोकस और पोल के बीच बनाएगा, या तो फोकस पे बनाएगा या फोकस और पोल के बीच बनाएगा, तब हम उसको आसानी से देख सकते हैं। बहुत दूर इमेज अगर बना देगा तो हमें दिखेगा पीछे से ट्रक आ रहा है, बहुत दूर अगर ट्रक है और उसका इमेज कहीं और बना देगा, दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। मान लिया ये आपने उपयोग कर लिया तो सबसे पहले की तो बहुत छोटा बना देगा, इनफाइनाइट पे है तो बहुत छोटा बना देगा, दिखेगा ही नहीं। और अगर फोकस पे आ गया तो इनफाइनाइट बना देगा, दिखेगा क्या? ट्रक आ गया नजदीक में तो दिखेगा नहीं, दिखेगा। बहुत बड़ा खतरनाक सा बना दिया हैवी तो नहीं दिखने वाला। तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि आपका अलग अलग पोजीशन के लिए, इमेज के पोजीशन के लिए अलग अलग, ऑब्जेक्ट के पोजीशन के लिए अलग अलग इमेज बना रहा है और सब उल्टा बना रहा है। तो ट्रक चल रहा है ऐसे और दिखेगा ऐसे, तो ये सारा प्रॉब्लम है। तो इसका यूज हम नहीं करेंगे। अरे प्रॉब्लम है क्या, दूसरे जगह इसका यूज है ना। अब जो हमारे पास कॉन्वेक्स है उसका उपयोग कॉनकेव की जगह नहीं करेंगे, कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स का यूज नहीं करेंगे। अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से उपयोग किया जाता है। अब हम इसको हेडलाइट में यूज करना है तो हेडलाइट में कॉनकेव का यूज करेंगे, कॉन्वेक्स का करेंगे तो थोड़े होगा, वहाँ पर भी प्रॉब्लम है। तो कॉनकेव मिरर का बेनिफिट है हमारे पास कि अगर इनफाइनाइट है तो सेंट्रलाइज करना है, अगर तो सेंट्रलाइज कर देंगे। प्रेशर कुकर का यूज़ किया जाता है जिसको सोलर कुकर कहते हैं भोजन बनाने के लिए, तो सोलर कुकर का उपयोग कर लेते हैं इसके लिए। अगर इसी में और चाहिए कि नहीं हमको फैला करके अलग अलग डायरेक्शन में अगर रे को भेजना है तो फोकस पे रख देंगे तो बहुत दूर तक लाइट भेज देगा। बहुत दूर से लाइट है तो उसको सेंट्रलाइज कर देना है, तो इसका ये बेनिफिट है। और कॉन्वेक्स मिरर में हमारे पास अगर सतह ऐसा है तो ऑब्जेक्ट अगर कहीं पर भी है तो आपको एफ सी के बीच ही बनने वाला है, या तो एफ पे बनेगा या एफ के नज़दीक बनने वाला है। तो ये इसके बारे में फिर हम देखेंगे अगले क्लास में। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले क्लास में देखेंगे हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव में क्या डिफरेंस है, और इसका फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। किसके लिए? कॉनकेव के लिए एक फार्मूला डिराइव कर देंगे तो कॉन्वेक्स के लिए भी अप्लाई हो जाएगा। वो हमारे पास फार्मूला होगा 1/v + 1/e = 1/a। तो या तो आप ये रे डायग्राम से आंसर निकाल लोगे, या तो फिर अगर आप इसका भी उपयोग करोगे तो ये जान लोगे कि इमेज कहाँ पर बनने वाला है। कैसे जानेंगे हम? फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/a। देखिए कैसे इसका उपयोग करते हैं। सो थोड़ा चर्चा इस पर भी कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट को अगर मान लिया जाए, यहाँ पर देखिए एफ पर, ये है आपका एफ और इमेज ये तो बन ही रहा है, इनफाइनाइट पे इमेज बन रहा है। ऑब्जेक्ट भी है आपका यू यहाँ है और वी इनफाइनाइट पे है, तो भी जो है वो इनफाइनाइट पे है, यू तो यू है ही और एफ तो एफ ही है। तो यू और यू है ही के अलावा यू जो है किसके बराबर है? एफ के बराबर है। यू जो है वो एफ के बराबर है। तो जो फॉर्मूला आप लगाइएगा देखिए जरा, 1/, आपको निकालने के लिए हम दे देते हैं भी निकालने के लिए, भी निकालना है, v = वाट इनफाइनाइट, इसको हम हटा देते हैं और आपको निकालने के लिए देते हैं कि कैसे आप निकालेंगे। चलिए जानते हैं कि इनफाइनाइट पे बनेगा, लेकिन अगर नहीं मालूम है, अगर फार्मूला से अगर हम उसको निकालना चाहें तो v बराबर क्या होगा? जब u f पर रखा हुआ है, u f पर रखा हुआ है यानी u f के बराबर है, तो हम जानते हैं 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v = क्या होगा? 1/f - 1/u। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 1/v = 1/f - 1/f। क्या आएगा देखिए, यानी इक्वल टू हमारे पास f 1 - 1 यानी 0/f। अब इसका उल्टा कर दीजिए,
1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई भी इज इक्वल टू 1 बाई एफ नहीं 0 बाई एफ आया, तो भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ बाई 0। तो क्या है बताइए इनफाइनाइट। 0 से एफ में भागा देंगे तो क्या आएगा इनफाइनाइट आएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल होता है इसका, न्यूमेरिकल भी हम बनाएंगे। और अगर हम इनफाइनाइट पे रखें उसके लिए हर केस के लिए हम देखेंगे, इसमें न्यूमेरिकल्स देखेंगे अगले क्लास में और डेरिवेशन देखेंगे 1 बाई बी 1 बाई यू 1 बाई एफ, और फिर सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होता है किसी चीज़ को लेकर के तो कमेंट्स कीजिए, उससे रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया कमेंट्स कीजिए क्या प्रॉब्लम है, देखेंगे फिर। थैंक यू।